A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nada, your social science teacher. So, class, today we all are going to start, continue our chapter number second of your political science book, that is constitutional design. So, class, first of all, let me know if you guys are able to hear my voice clearly or not. Just do raise your hands if you guys are able to hear my voice clearly. Okay, thank you so much. You may lower down your hands now. Okay, class. So, what we have done in our last class, we have discussed about the Constituent Assembly. Okay, we discussed about our Constituent Assembly. Uh, why do we accept the Constitution which was made like 70 years ago? Why we are accepting that even today also? So we have discussed all these things in our last class. Okay, so today we are going to start with our new topic of this chapter, that is the what are the guiding values of the Indian Constitution. Guiding values बोल दीजिए, principles बोल दीजिए, ideals बोल दीजिए, ठीक है. तो क्या गाइडिंग वैल्यूज थे, क्या प्रिंसिपल्स थे, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो guiding values of the Indian Constitution. Okay, so in this book we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. So basically, we will talk about the philosophy of the Constitution, basic philosophy, basic ideals. What is philosophy? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें ही हम फिलॉसफी बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल के जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसको लेके क्या प्रिंसिपल्स हमारे बन रहे हैं, क्या आइडियल्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज फिलॉसफी. ओके, सो so we will talk about the basic fundamental principles mentioned in our constitution. Okay, so first of all, it is important that it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. So this is what the preamble to the constitution does. Now, first of all, what is this preamble? I already told you the meaning of preamble. Preamble means the introductory page of the constitution. जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी बुक का, एक फर्स्ट पेज होता है, उसमें प्रीलिम्स होते हैं, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप इस बुक में क्या पढ़ने वाले हो, ये बुक किस वैल्यूज से इस बुक को हमने लिखा है, something all those things. So just like that, preamble is an introductory पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जितने भी गाइड वैल्यूज है कि क्या आइडल्स, क्या प्रिंसिपल्स, क्या वैल्यूज को लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है. ओके, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक जो गाइडिंग वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी गाइडिंग वैल्यूज जो है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन की गई होती है. किसी भी कंट्री के, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर ऐसी कंट्री जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रीएम्बल में उसके गाइडिंग वैल्यूज को मेंशन किया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स को मेंशन किया जाता है कि व्हाट आर आवर बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कंट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या आइडल्स हैं, किन आइडल्स को हम फॉलो करेंगे. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें मेंशन होती है और एक प्रीएम्बल में उसका जस्ट होता है, वो सारी चीजें उसे शॉर्टली एक्सप्लेन किया, शॉर्टली उसमें मेंशन किया जाता है प्रीएम्बल में. ओके, सो नाउ द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. First of all, the dream and the promise. So now, some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, like Mahatma Gandhi. He was not the member of the Constituent Assembly.
ठीक है, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट फिर भी उनके जो विजन्स थे, उनके जो थॉट्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स को जो है हम देखते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। जैसे कि इन द ईयर 1931 एक मैगजीन थी, यंग इंडिया करके एक मैगजीन आया करती थी, और उस यंग इंडिया में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एंड ही wrote about what he wanted the constitution to do, according to do what is the constitution to him, और जो भी इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। सो द ड्रीम एंड द प्रॉमिस करके है, और महात्मा गांधी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। नाउ जस्ट लुक एट दिस सम लाइन्स फ्रॉम द आर्टिकल। I shall strive for a constitution which will release India from all the thraldom and patronage. ठीक है, I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. So now he just wrote about what he wanted from an independent India, और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उन्हें एक यंग इंडिया के लिए। He put his thought in this article। ठीक है, जो यंग इंडिया 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को या फिर अपने विजन्स को किस आर्टिकल में, कौन से मैगजीन में मेंशन किया था, कौन से ईयर में मेंशन किया था। तो he wrote about his vision in the magazine of Young India in the year 1931. Okay, so what he wrote कि मुझे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मुझे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो जिसमें पैट्रोनेज की फीलिंग हो, ठीक है, जिसमें स्लेवरी ना हो, ठीक है, ना स्लेवरी हो, इंडिया को वो स्लेवरी से रिलीज करवा दे, ठीक है, पेट्रियोटिज्म की, लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग हो, ठीक है, लोग अपने आप को इक्वली फील करें, ठीक है, किसी को भी बिट्रे ना करे, ठीक है, हेल्पफुल हो, काइंड हो, ऐसे लोगों की मुझे इंडिपेंडेंट इंडिया में जरूरत है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो ऐसे लोगों को वर्थ दे। So I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their countries in whose making they have effective voice, like equal importance, कि चाहे poor हो चाहे rich हो, everyone deserves freedom, ठीक है, सबके पास फ्रीडम होना चाहिए, सबके पास एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जहाँ पे पुअर भी क्या है अपनी वॉइस को रख सके, अपनी वॉइस जो है पहुंचा सके, ठीक है। मुझे ऐसा इंडिया चाहिए जहाँ पे कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं हो, सब इक्वल हो, ठीक है। एक ऐसा इंडिया चाहिए जहाँ पे सब मिलजुल के रहें, ऑल कम्युनिटी शैल लिव इन अ परफेक्ट हार्मनी एज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन। तो बहुत जरूरी था यूनिटी में रहना, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा इंडिया चाहिए जहाँ पे सब मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, फ्रेंड बन के रहे, ठीक है। अनटचेबिलिटी के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, कोई रूम नहीं होना चाहिए। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स मीन्स कोई भी ड्रग्स ना यूज करे, कोई भी अल्कोहल को कंज्यूम ना करे, ठीक है। ऐसी चीजें, ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिया में मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। वुमेन जो है उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले, जो मेन के राइट्स हैं वो वही राइट्स वुमेन के भी होने चाहिए। आई शेल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। बस ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और ऐसा इंडिया बन जाए तो मैं हर चीज से
आई एम सेटिस्फाइड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. सो ही पुट हिज थॉट, ही पुट हिज विजन ऑन इन दिस आर्टिकल ऑफ यंग इंडिया. वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट फिर भी इनका जो विजन थे, इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन किए गए. ओके, so this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution. But he had different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. ठीक है, अब देखिए, महात्मा गांधी भी चाहते थे कि इक्वालिटी हो. ठीक है, तो, हमें इक्वालिटी को, जो इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना है, इक्वालिटी को लाना है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. ठीक है, फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, सो इनके जो व्यू पॉइंट्स थे, ठीक है, इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए, इनके जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू महात्मा गांधी. ठीक है, उन्होंने बहुत बार क्रिटिसाइज किया है महात्मा गांधी को. ठीक है, उनके विजन को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके तरीके जो थे, बी आर अम्बेडकर के जो मेथड्स थे वो काफी अलग थे. तो इवन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका था, तो उसकी कंक्लूडिंग स्पीच में उन्होंने कहा भी है, on the 26th January 1950 we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Okay, so now he said, like 26 जनवरी 1950 को हम अडॉप्ट कर लेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बहुत सारे एक ऐसी लाइफ में एंटर कर जाएंगे. अब देखो, कंक्लूडिंग स्पीच हुई थी 26 नवंबर 1949 को. ठीक है, और अडॉप्ट किया था, इम्प्लीमेंटेशन जो थे वो 26 जनवरी 1950 को किया था हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. ओके, तो नाउ ही वाज सेइंग कि हम एक कॉन्ट्रोडिक्शन से भरी लाइफ में जो है एंटर कर जाएंगे, क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, या फिर अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने कहा है कि हमारी जो इक्वालिटी है, ठीक है, पॉलिटिक्स में तो हमारे पास इक्वालिटी है, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी है. ठीक है, रिच और पुअर, क्लास इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. इवन आज भी क्लास इक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में. पॉलिटिक्स में इक्वालिटी, पॉलिटिक्स में तो बोल रहे हो कि आप वन मैन वन वोट इक्वल्स टू वन वैल्यू, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में कहाँ पे वन मैन वन वैल्यू है? ये देखने को मिलता ही नहीं है. हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हम डिनाई करते हैं, ठीक है, कि वन मैन वन वैल्यू को. तो हम ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शन ही है ना. और एक साइड तो हम बोल रहे हैं कि वन मैन इक्वल्स टू वन वोट इक्वल्स टू वन वैल्यू, बट वहीं पे जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, वहां पे हम वन मैन वन वैल्यू को डिनाई करते जा रहे हैं. तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी तो है, कॉन्ट्रोडिक्शन से भरी लाइफ ही तो है. कि मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, दो तरीके से बात करना. आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड, एक हिंदी में टर्म है.
इंजर्ड हो Okay, so in his concluding speech, Dr. Bhimrao Ambedkar said that political equalities तो exist कर रही है, but social and economic equalities जो है वो exist नहीं करती, ठीक है? We are not giving priority to our social and economic structure, and if we will not give priority to our सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज तो समहाउ एक दिन ऐसा आएगा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी जो है एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगी, एक रिस्क में आ जाएगी, ठीक है? हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं रहेगी. So he said these things in his speech, in his concluding speech. Now just look at one more speech given by one of the famous leader, Jawaharlal Nehru. At the stroke of midnight on 15th August 1947, 1947 को उन्होंने ये speech दिया था. So long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at the solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India.
Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of the sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we can make fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. So now just look at this speech. ठीक है, अब इस स्पीच के अकॉर्डिंग देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्पीच दी थी. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिस्ट? ट्रिस्ट का मतलब होता है अ मीटिंग और मीटिंग प्लेस. ठीक है, एक मीटिंग प्लेस. ठीक है, अब एक ऐसा टाइम आ चुका है, ये मिडनाइट 15 अगस्त मिडनाइट में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी कि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें एक प्लेज लेनी है कि जब पूरी दुनिया सो रही है, हम जो है हमें इंडिपेंडेंस मिली है. इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. हमें फ्रीडम मिली है. एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जो हिस्ट्री में अब फिर से रिपीट नहीं करेगा. हम लोग जो है एक पुराने से नया, ठीक है, एक नया बर्थ ले रहे हैं. एक स्लेवरी का जो एज थी, स्लेवरी वाली, हम वो खत्म हो चुकी है. हमारा जो नेशन इतने टाइम से एक इंडिपेंडेंस के लिए जो दुआ कर रहा था, वो आज हमें फाइनली मिल चुकी है. एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जब हम प्लेज लें कि हम अपनी इंडिया को क्या है डेडिकेटेडली हम सर्विस देंगे एंड हर पीपल एंड द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. और हम सबसे बड़ी वैल्यू हमारे अंदर रखेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी. हमारे अंदर ह्यूमैनिटी जो है एग्जिस्ट रहेगी, हमेशा एग्जिस्ट रहेगी. फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम के साथ हमारे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एंड जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रेस्ट अपॉन दिस असेंबली अ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज द सोवरेन? सोवरेन का मीनिंग होता है नो एक्सटर्नल पावर, नो आउटसाइड पावर विल no outside power will make us slave or can dictate us. कि कोई भी आउटसाइड पावर जो है हमें डिक्टेट नहीं करेगी. हमारे इंडिया के जितने भी डिसीजंस हैं, वो डिसीजन सारे जितने भी डिसीजंस हैं इंडियन सिटीजन्स ही ले सकते हैं. सो एक सोवरीन पीपल ऑफ इंडिया, हम एक सोवरीन बॉडी जो है बन चुके हैं. एंड हमने हर तरीके का जो पेन है, ठीक है, हमने देखा है. ठीक है, हमने बहुत सा स्ट्रगल किया है, हमने हर चीज देख ली है. बट अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हम उस पेन को भूल जाएं, ठीक है, और एक अच्छी लाइफ जिए. ठीक है, जिसमें ह्यूमैनिटी जो है सबसे बड़ा, ह्यूमैनिटी सबके अंदर होनी चाहिए. वी हैव टू फुलफिल आवर प्लेज. ठीक है, जो आज हम प्लेज ले रहे हैं, हमें वो फुलफिल करना है. हम इंडिया के लिए सर्विस एनी टाइम क्या है, हम सर्विस देंगे. हमें जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो ऐसे सिटीजन्स थे जिन्होंने सफर किया है, हमें उनको याद करते हुए क्या करना है, प्लेज लेना है कि हम फिर से ऐसी सफरिंग्स नहीं आने देंगे. ठीक है, हमें पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को क्या करना है, एंड में लाना है. कोई डिजीज नहीं होगी, इक्वालिटी होगी, सबके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी. इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती थी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो ये एक इन्होंने बोला था कि अब इंडिया जो है फ्री हो चुका है. अब सफरिंग का टाइम जो है, बहुत लंबे समय से जो हम सफरिंग्स झेल रहे थे, या फिर हम जो सफरिंग हमारे अंदर थी, वो अब खत्म हो चुकी है. सो वी लिव विद हार्मनी, वी लिव विद
we live with humanity. ठीक है, this was the speech by जवाहरलाल नेहरू. तो कुछ इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे, जैसे महात्मा गांधी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट फिर भी उनके कुछ विजन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया. बाकी जो ये विजन्स थे, जवाहरलाल नेहरू के विजन्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन्स, उनको भी कहीं ना कहीं क्या किया गया है, मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. Okay, so class, now just look at the figures, some important constituent some important members of the constituent assemblies. Just look at this. कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था. बाय प्रोफेशन ऑक्यूपेशन वो एडवोकेट रहे हैं, हिस्टोरियन और एक लिंग्विस्टिक हैं. कांग्रेस लीडर थे और गांधी जी को फॉलो करते थे. बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कैबिनेट मिनिस्टर बने, यूनियन कैबिनेट के. इवन वो स्वतंत्र पार्टी के क्या रहे हैं, फाउंडर रहे हैं. भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था. चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के. सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर थे वो, ठीक है. इन्होंने कास्ट डिवीजन के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला है और कास्ट इनइक्वालिटीज के लिए काम किया है कि इक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटी जो है वो रिमूव हो सके. लॉ मिनिस्टर रहे हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है. इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं. ही वाज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेस्ट बंगाल में इनका बॉर्न हुआ है ना. जस्ट लुक एट द नेम्स एंड द टेरिटरीज. मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मतलब हर एक टेरिटरी से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स प्रेजेंट थे, राइट. इससे ये पता चल रहा है. मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट, एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर, ठीक है. मिनिस्टर रह चुके हैं आपके इंडस्ट्री के मिनिस्टर रह चुके हैं, इंटरिम गवर्नमेंट एजुकेशनिस्ट और लॉयर रह चुके हैं. हिंदू महासभा के एक्टिव लीडर रह चुके हैं. प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक है, फाउंड किया था, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ रह चुके हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी. फिर देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे. लॉयर हैं, कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है. सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और एंटी इंपेरियलिज्म को इन्होंने एडवोकेट किया है. एंड आफ्टर दैट ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, ठीक है. पोएट थी, राइटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं. अमंग द फोरमोस्ट वुमेन लीडर इन द कांग्रेस, ठीक है. और गवर्नर, बाद में उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही है ये, ठीक है. आफ्टर दैट सोमनाथ लाहिरी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं. राइटर एडिटर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे हैं ये. और आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल के जो एमएलए भी रह चुके हैं सोमनाथ लाहिरी, ठीक है. सो नाउ 1 2 मोर. यस, बलदेव सिंह हरियाणा से बिलोंग करते थे. एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, ठीक है. और पंथिक अखिली पार्टी, पंजाब में एक असेंबली है पंथिक अखिली पार्टी, वहां के लीडर रह चुके हैं. कांग्रेस के नॉमिनी रह चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के नॉमिनी रह चुके हैं. आफ्टर दैट डिफेंस मिनिस्टर जो थे बलदेव लहरी रहे हैं, ठीक है. सो ये दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी. पब्लिक एक्टिविस्ट रही है, वुमेन के लिए बहुत काम किया है. आंध्र महिला सभा की फाउंडर रह चुकी हैं, ये कांग्रेस की लीडर थी. आफ्टर दैट फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है. इंडिपेंडेंस के जितना भी लेटर लिखा है, आफ्टरवर्ड लिखा है, इट मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हुई है. Okay, so this is all about today class. Go through the topics, go through all these 3 speeches or statements given by 3 important leaders. Okay, and if you find any doubt, you may ask me. This is all about today. Yes, Kushi Sancheti, please unmute your device. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, beta. Ma'am, the Constitution Assembly topic है ना, page number 24.
Constituent Assembly topic, yes. मैम उसमें सेकंड पैराग्राफ The फिफ्थ लाइन drafting of document called the Constitution. That this one. वो मैम राइट साइड Okay. The Constitution does not reflect the views of its members alone, right? ये वाला? टाइम तक It expresses a broad consensus of its time. Okay. Now this Constitution, जो हमारा Constitution लिखा गया है, ठीक है, आज से 70 साल पहले, ठीक है, आपके बुक में 6 decades लिखे हुए हैं, but it's almost 70 years. 70 years पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसमें खाली जो मेंबर्स है उनका ही रिफ्लेक्शन नहीं है कि जितने हमारे 299 मेंबर्स थे उनको जो सोचते थे उसी को मेंशन किया गया है. नो, इसमें जो भी हमारे इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम. कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है. जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे जो हमारे लीडर्स ने, हमारे इंडियन सिटीजन्स ने जो स्ट्रगल फेस किया था, उससे एक्सपीरियंस करते हुए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स को क्या किया गया, मेंशन किया गया था, ठीक है. उससे एक्सपीरियंस किया था कि स्ट्रगल के टाइम उन्हें पता चला नहीं, हमें राइट, ये यूनिवर्सल राइट टू वोट चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, हमारा जो कंट्री है वो सोवरेन होना चाहिए. ये सारे जो कुछ आइडल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें खाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के थिंकिंग से नहीं, बट नेशनल मूवमेंट्स में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे वहां से पता चला है. तो ये एक्सप्रेस ये कर रहा है, अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, ठीक है. यस मैम. एंड मैम मैरी पीस मतलब मैरी मतलब MERE. मेयर